Saraswat ji, Member Niti Aayog, Dr. Anil Kumar Jain ji, Secretary Coal, Shri Arun Goyal ji ka सानिध्य, Secretary Heavy Industries, M. Nagaraju, Additional Secretary and Nominated Authority, और श्री प्रमोद अग्रवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए संकल्प लें, जो पल बीता सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है, मन में घर घर श्री कृष्ण छवि, अब नव इतिहास रचाना है। आज नया इतिहास रचाने का वक्त है। सरकार के तमाम प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भर स्वप्न को साकार करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, may we have a big round of applause for our guest of honors, Pralhad Joshi ji, Honorable Minister of Coal Mines and Parliamentary Affairs। ये बारा ये आभार, बहुत शुक्रिया, अनुरोध करूंगी और ये स्वागत करते हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का, Honorable Minister of Heavy Industries। आज ये ऐतिहासिक मौका हम सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फूलों से और शॉल के द्वारा आभार प्रकट करते हुए राकेश कुमार जी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर LLC इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय मंत्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, शुक्रिया। देवियों सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच में डॉक्टर डी सारस्वत जी भी मौजूद हैं, मेंबर नीति आयोग, आपका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सर। डॉक्टर अनिल कुमार जैन, सेक्रेटरी कोल, इनका भी स्वागत आनंद प्रसाद जी द्वारा, एडवाइजर प्रोजेक्ट्स, आप स्वागत करें डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी का भी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर डी सारस्वत, मेंबर नीति आयोग, आपका आभार, और डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी का भी स्वागत आनंद प्रसाद द्वारा, एडवाइजर प्रोजेक्ट्स। बहुत ही मेहनत के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और इसे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना बहुत से लोगों की भागीदारी है। आभार आपका। हमारे बीच मौजूद श्री पंकज जैन जी, सेक्रेटरी MOPN जी, आपका स्वागत करेंगे। आभार आपका एम नागराजू, एडिशनल सेक्रेटरी एंड नॉमिनेटेड अथॉरिटी का स्वागत करते हुए देवाशीष नंदा जी, डायरेक्टर बी नंदा जी, पुष्पों द्वारा आभार प्रकट करते हुए और ये स्टील की दुर्गा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure and it's my privilege to welcome on this day of immense importance for the country as well as Ministry of Coal and the PSUs, major PSUs of the country. The long manthan realized the dream propounded by Honorable Prime Minister that the country should achieve 100 million ton of coal gasification by 2030. Once these manufacturing plants are established, it is not only established with financial viability but also technology and viability of this manufacturing facilities. And it also prolonged the use of coal for non-thermal purposes, and also will continue to develop the backward regions in Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha by taking the development work in the coal sector. I take this as my privilege and honor to extend a very warm welcome to our Minister for Coal, Mines and the Parliamentary Affairs, Shri Pralhad Joshi ji, under whose continuous guidance and motivation. Today we are able to see the day to sign the agreements. Sir, it is my privilege to extend a very warm welcome to you. It is also my honor to welcome Shri Mahendra Nath Pandey ji, Honorable Minister for Heavy Industries of the country, to this momentous occasion. BHEL and the Ministry of Heavy Industry has been very proactive in the coal gasification since long, and to take forward the agenda of coal gasification, their committed leadership and buy-in is very important for the country. I am very happy to note that BHEL under the dynamic leadership of the Minister and the Secretary Heavy Industries have been extending full support and cooperation
the Minister of Coal. Sir, we extend you a very warm welcome on this occasion. I also take it as a privilege to extend very warm welcome to Dr. B.K. Saraswat, who has been leading efforts on coal gasification in Ontario, and he also head the technical committee on coal gasification. Sir, your support and guidance has been very invaluable, so we extend you very warm welcome. A pillar of support and also strategic thinker on coal gasification in the country, who has, in fact, who has given untiring and uncompromising efforts and taken a lot of initiative to see the day. In fact, we thought that since I think all of us know, since he is going to superintend end of this month, we were actually determined to have this signing ceremony so that fitting to go to his initiatives. Sir, it is my honor to extend very warm welcome to you, sir. It's also my personal privilege and honor to extend very warm welcome to Shri GAIL, sir, Secretary of Industries, who has been present today with us. And also from the very beginning, he has been very positive in his extending support to this gasification and signing of MoUs. And whereas in the past we could not get so much support from other ministries, but the Secretary of Heavy Industries, the moment we mentioned to him, he was 100% with us and voted the BHEL also to sign the MoUs. I also extend my warm welcome to Chairman CL, my friend Pramod Agarwal, to this occasion, and also Chairman BHEL, Mr. Singhal, and Chairman NLCL, Mr. Rakesh Kumar, and my own and directors of GAIL, IOCL, and other senior officers of various ministries, and my own colleagues from the Minister of Coal and other coal companies to this significant day. I also welcome very warm welcome to the media and other dignitaries who are present today to witness this historical occasion of signing of MoUs by 5 major PSUs: CAL, BHEL, GAIL, IOCL, and NLCL. I hope this day will be the beginning of starting of new phase for the Minister of Coal and coal gasification in the country. Thank you very much. अभी अंतिम लक्ष्य की ओर आपका कदम होता है, लगातार आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय डॉक्टर A.K. जैन जी से, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, टू डिलीवर कीनोट्स ऑन कोल गैसिफिकेशन। सो डाउन दैट। आदरणीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय मंत्री भारी उद्योग श्री पांडे जी, मेरे कुलीग श्री अरुण गोयल, आदरणीय सदस्य नीति आयोग डॉक्टर B.K. सारस्वत जी, चेयरमैन कोल इंडिया नागराज, चेयरमैन BHEL, चेयरमैन नेवी लिग्नाइट, इंडियन ऑयल और गेल के वरिष्ठ अधिकारी, प्राइवेट सेक्टर से यहाँ उपस्थित सीनियर डिग्निटरीज, मेरे मिनिस्ट्री के कोलीग्स और सभी सभा में उपस्थित साथी, आज का दिन मेरी समझ से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये हॉल छोटा है परंतु ओकेजन बहुत बड़ा है। आज हमारे साथ एक बहुत ही उच्च दर्जे के नागरिक वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच में मंच पर हैं। इसके मेरे पास ज्यादा समय नहीं है परंतु कहने को बहुत कुछ था। नागराज ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है। हमारे देश में कोयले की प्रचुर मात्रा है, लेकिन कोयले को उपयोग करने की जो तकनीक है अभी तक की, वो सिर्फ उसको जलाकर बिजली बनाने की है और बाकी कुछ मात्रा जो देश में पूरा कोयला उपयोग होता है उसका कुछ अंश उद्योगों में भी जाता है। और यह दोनों प्रणालियां, इनसे बहुत कार्बन का उत्सर्जन होता है और ये देश के लिए, विदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय है। कोयले का गैसिफिकेशन, कोयले से तरह तरह के दूसरे उत्पाद
गैसिफिकेशन माध्यम से बनाना एक ऐसी तकनीक है जिसमें कार्बन को मैनेज कंट्रोल किया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में जैसे तेल, गैस और परमाणु ईंधन की बहुत कमी है, हमारे पास रिन्यूएबल बहुत है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब तक वो हमारी आवश्यकता के अनुरूप विकसित नहीं हो जाते, तब तक कोयले के संसाधन का उपयोग इन नई तकनीकों के माध्यम से करना देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे स्वयं मालूम है, मैं 2003 में पेट्रोलियम मंत्रालय में था, 20 साल हो गए। तरह तरह के प्रयास हुए कि कोयले को आधुनिक तकनीकों से देश के विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, चीजों के लिए विकसित किया जाए, परंतु वो विकास पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। मुझे याद है पेट्रोलियम मंत्रालय में ऑयल इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया और वो पायलट के स्टेज पर ही रह गए। उसके बाद कुछ प्रयोग प्राइवेट सेक्टर में हुए, स्टील में, जो कि बहुत अच्छे प्रयोग हैं, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। एक फर्टिलाइजर के लिए तालचेर फर्टिलाइजर का एक प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन पर आधारित आ रहा है, परंतु यह फार एंड फ्यू बिटवीन जिसे कहते हैं। आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो MoU आज साइन होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तरह से साधुवाद का सही उसका अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए घोषणा की हुई है 2030 तक हमें 100 मिलियन टन तक पहुंचना है। तो पब्लिक सेक्टर का और 3 मंत्रालयों का टीम स्पिरिट में इकट्ठे होकर आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मैं पहले कह चुका हूँ कि नई तकनीक को लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इतनी पूंजी लगाना और तरह तरह के प्रयास में लेना, इस पूरे काम के लिए देखा जाए तो सर्वप्रथम हमें प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल से कोयले के गैसिफिकेशन के लिए प्रयासरत रहे हैं। गुजरात में आज हम लोग जैसे नेवली लिग्नाइट का MoU भी साइन करने जा रहा है, उसकी प्रचुर मात्रा कुछ ही राज्यों में है जिनमें गुजरात एक है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने अपने गुजरात के कार्यकाल में भी उसे विकसित करने की कोशिश की थी और उनका निरंतर दबाव था। और इस उपलब्धि के लिए हमारे मंत्री जी, मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ मुझे 3 साल के करीब हुए, हमेशा कोल गैसिफिकेशन के लिए कोई न कोई उदार नीति लाने के लिए हमेशा इनका दबाव रहा। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर सारस्वत, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम लोगों को बहुत मार्ग दिखाया। BHEL के CMD है, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसके लिए उन्होंने उत्साहित किया। चेयरमैन कोल इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए, पूंजी निवेश करने के लिए अपने संचालक मंडल से उसकी सहमति दी। तो आज बहुत सारे लोगों के मिश्रित इस हवन में सब लोगों ने आहुति डाली है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ओकेजन हमेशा याद रहेगा। और मुझे खुशी है कि इस महीने मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, परंतु उसके पहले ये MoU साइन हुए और मैं इसके साथ जुड़ सका। धन्यवाद। नमस्कार। Honorable Minister for Coal, Shri Pralhad Joshi, Honorable Minister for Heavy Industry, Dr. Mahendra Pandey, my friends and colleagues, Shri Anil Jain, Shri Arun Goyal, Shri Pramod Agrawal ji, Mr. Nath ji, and the CMDs of BHEL, Naval Lignite, and many other friends from industry and other institutions who are present here on this occasion. I call it a momentous occasion because it has been one of my dreams, and that dream was certainly catalyzed by the announcement which our Honorable Prime Minister made that India should do coal gasification. And I want to singularly identify this fact that it was because of the major push which the Honorable Prime Minister has given that we have been able to harness the capabilities of our country to actually launch a program of coal gasification. I don't have to emphasize to this group that coal has a very important role to play.
all the energy transition, energy strategies which have been worked out by various think tanks, international or domestic, have identified that coal will remain as one of the sources of energy even in 2070 to the extent of 10%. And then you can imagine the kind of problems which we have when we combust the coal in terms of pollution. The only way to reduce pollution by coal utilization is by doing coal gasification. In addition to doing energy production, coal is being used also for a large number of other products like what we are discussing today, chemicals, hydrogen, and fertilizers and so on. So its usage always creates problems. The problem was the Indian coal was considered to be something which is very dirty coal. It has got high extra tank. And everybody felt that this is a coal which cannot be gasified. I still remember about 3-4 years back when we were discussing the setting up of the Talcher plant for fertilizers production. Everybody felt that Indian coal is very bad and it's very difficult to gasify, so it will not be possible. And we went out, we got the services of foreign companies for setting up the coal gasification unit, which is at the moment going on. At that point in time, I think our honorable Prime Minister said that India should have its own coal gasification technology. And I was very happy to work with 3 agencies in the country. One of them was BHEL R&D, CMD is sitting here, who specially gave focus on the coal gasification R&D project and set up almost about 1 ton per day kind of a production unit through R&D. We started a program with IIT Delhi and Thermex, another private agency, under the funding from the Department of Science and Technology, and they could also set up a plant of 1 ton per day of producing methanol from coal. And this is the indigenous development of coal gasification technology without any support from any foreign agency. Complete self-reliance as far as the technology of coal gasification, which was supposed to be taboo as far as the Indian coal was concerned. So, using that technology, now BHEL is going to work with Coal India and going to set up a manufacturing plant. Other 2 agencies are also going to do that, and that will be a great occasion. The advantage is that ultimately, if we are looking at good clean fuels like hydrogen and ethanol and others, I think coal gasification becomes the important requirement. If you take coal, gasify it and do carbon capture and utilization, you can produce blue hydrogen, which will be useful as a product for clean energy also. Similarly, all your chemicals like the one which we are discussing now, whether it is methanol or DME or ethanol or for that matter fertilizers or ammonia, all of them are carriers of hydrogen. So ultimately, we are through coal, we are sorting this problem. Normally, people say why coal only? Because India has a huge resource, as Mr. Jain was telling. We have the highest coal resource. We don't have gas. We can't produce hydrogen using the gas. It is not the right approach for us. So only roads is either to go for the water electrolysis or do it from this place. So I think blue hydrogen from coal will be one more the major initiative, and the pathway will be through the coal gasification unit. Technology is indigenously available. Industry is well equipped today to manufacture this, and I see many industry partners present here who will be very happy to take this technology and set up plants which are being signed for today. I congratulate Shri Jain and all the CMD BHEL, CMD Ignite Corporation and others who are instrumental in making this possible today, and certainly the blessings of both the ministers who are present here, who have really pushed this program, and today occasion has come that we are signing the MoUs. So once again, congratulations. पूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से, आप आइए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सभी आपके प्रेरणादायक उद्बोधन का इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऊर्जा मंत्रालय और हमारे मंत्रालय तथा पेट्रोलियम से आज इस बड़े महत्वपूर्ण MoU साइनिंग के मौके पर हम सबके बीच अत्यंत सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला खान मंत्री माननीय
जोशी जी, डैश पर उपस्थित श्री अनिल जैन जी, श्री एम नागराजू जी, श्री अरुण गोयल जी, वीके सारस्वत जी, प्रमोद अग्रवाल जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे इसके अन्य विभागों के भी सभी उच्च अधिकारी और हमारे भेल के CMD, HI के JS तथा भेल के इस R&D हैदराबाद सहित सभी हमारे अन्य उच्च अधिकारी, मीडिया के साथियों, आप सभी के प्रति सम्मान के साथ आज इस मौके पर शुभकामना और शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अभिनंदन प्रदान करूंगा माननीय डॉक्टर जोशी जी को, जिन्होंने विशेष पहल करने में अहम भूमिका निभाई कि हम सब मिलकर शीघ्र इसमें स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वव्यापी विजन है उसके दृष्टि से शीघ्र एक कारगर पहल करें। और हमारे लिए सौभाग्य है कि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, संसद में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मैंने भरोसा जताया था कि अक्टूबर तक हम इसको पूरी तरह क्रियान्वयन के लेवल पर आ जाएंगे। और मैं भेल के अपने कंसर्निंग अधिकारियों को और अपने डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को इस बात की बधाई दूंगा कि उस वायदे के हिसाब से समय से वो अपनी पूरी तैयारी करके आज इस मुकाम पर पहुंचाने में मेरे डिपार्टमेंट को और पूरी इंडिया इस काम में अग्रणी भूमिका अदा की है। बहुत विस्तार में ले जाके पूर्ववर्ती हमारे सारस्वत जी बहुत ही, जैन साहब भी बहुत अनुभवी है, सारस्वत जी तो नीति आयोग के हमारे सम्मानित कई ऐसे शोधपरक कार्यों के अग्रणी है। हम जोशी जी को भी सुनेंगे, लेकिन कुल मिला के अपने आप में दुनिया में एक उल्लेखनीय बात है कि विशाल आबादी का देश हमारा भारत सबसे कम अधिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कार्बन उत्सर्जन करता है। विकसित देशों के प्रयोग के प्रतिशत में हम अभी दुनिया के लिए बहुत ठीक है। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP26 में वचन दिया है, उस वचन की ही सफलता की एक आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है आज का ये रूप। हमारे देश में कोयला का जितना आज उत्पादन है उस हिसाब से हम इसे थर्मल प्लांट और अन्य उपयोग के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और वो सामर्थ्य आज हमारे बीच है, उस पर आज एक अहम पहल हो रही है। मैं इसके आज अपने देश में इसमें जब से कोयला खान मंत्रालय माननीय जोशी जी ने संभाला, इसमें कई अहम पड़ाव उन्होंने हासिल किए और जिसके चलते आज हम ये 5वें सबसे बड़े कोयला उत्पादक के रूप में आज हम लोग दुनिया में हैं। और इस नए दृष्टिकोण के साथ हम लोग आज आगे आ रहे हैं। हमारा भेल जो 1980 के दशक से के अंतिम चरणों से इस गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर काफी काम कर रहा है और उसको आज परिणाम में लाने में और उच्च आयस वाले भारतीय कोयले के उपयुक्त प्रेस्क्राइब्ड फ्लूइड हाइट वेट गैसिफिकेशन तकनीक पर जो कंपनी हमारी काम कर रही है, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे भारतीय कोयले में ऐश की मात्रा लगभग 75% होती है। इस प्रकार के कोयलों को संभालने के लिए विदेशों में उतनी हाई टेक्निक उपलब्ध नहीं है। अन्य लोग जो इसमें पहल कर रहे हैं उसमें भेल ने भी हमारी जो R&D हैदराबाद ने उच्च कोयले में मेथनॉल उत्पादन का 0.25 TPD के लिए एक प्रौद्योगिक सुविधा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी इसी साल के जनवरी में मैंने इस प्रयोग को राष्ट्र को समर्पित अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया था। तो आज इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम आज तमाम हमारे
ऐसे 5 से अधिक हमारे जो उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान है और 14 एक्सीलेंट सेंटर उसके माध्यम से भेल एक मजबूत R&D प्रणाली के माध्यम से इन उत्पादों को और विकसित करने में एक सक्षम क्षमता के साथ नवीनतम तकनीक कोयला गैसीकरण की तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ये NLC इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया से जुड़ी है हमारी संस्था IOCL, ये आज जो एक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक आकार के इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उल्लास और बधाई का मौका है। कोल इंडिया के सहयोग और कोयला क्षेत्र की अपनी आगामी गंभीर जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम, उस गंभीरता के साथ हम भेल के लोग, हमारा हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्वदेशी प्रौद्योगिकी इंजीनियर निर्माण और जो उत्पादन के क्षेत्र में आप जानते हैं कि उसकी क्षमता भी आज भी हिंदुस्तान के 90% सेल और थर्मल प्लांट उसी की क्षमता से बनाए हुए हैं। नई पहलों के बावजूद अभी भी देश को सर्वाधिक बिजली देने का काम डिपार्टमेंट के भेल के ही किए संयंत्रों से देश में उपलब्ध हो रहा है। तो इस काम में भी हम आपके सहयोग के माध्यम से इस भारत के प्राकृतिक भंडार का पर्यावरण के अनुकूल प्रयोग की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम के साथी बनेंगे। आज के इस मौके पर मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन पंचामृत का दिया है, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना हम हर भारतवासी का कर्तव्य है। और नरेंद्र मोदी जी भारत में अब तक की परंपराओं से अलग हटके वे कैसे प्रधानमंत्री हैं, वे अपने और अपनी पूरी टीम, और उस टीम में केवल मंत्री ही नहीं, आप भी उस टीम के हिस्सा हैं। ये टीम इंडिया है। वो कोई पहल लेते हैं तो उस पर लगातार पहल करना, उसको स्मरण दिलाना, उसको खटखटाना। शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश को ऐसा मिला है कि किसी भी स्कीम पर 1 मिनट के लिए शिथिल नहीं होते। तो जो उन्होंने स्कीम लिया, हम सबका कर्तव्य है कि जो उन्होंने दुनिया को भरोसा दिया अपने पंचामृत से कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल एनर्जी ये इसको 500 गीगावाट तक करेंगे। 2030 तक 50% एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यमों से सुनिश्चित करेंगे। और तीसरा, अमृत वचन कि कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। चौथा, हमारी इकोनॉमी में कार्बन उत्सर्जन को 45% तक 2030 तक लाएंगे। और एक टोटलिटी में हम 5वां अमृत वचन, जो व्यक्ति एक विजन दिया है कि 2022 में, और ये जो 22-23 का अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में अब तक की परंपरा रही है इस देश के अंदर कि अनेक शासनकर्ता, चुने हुए लोग अपने चुनाव घोषणा पत्र मात्र तक, अपने चुनावी वायदे, अपनी पार्टी, अपने थोड़े से दायरे के हितों के आगे नहीं सोचते थे। उनका विजन ही बात कुल मिला के 5 साल का होता था, और 5 साल में भी वो अपने विजन 2-3 साल तक का चलते थे। आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जो आज हैं और 8 वर्ष में निरंतर देश को एक हर क्षेत्र में नई राहों को ले जा रहे हैं। लेकिन आगामी 25 वर्षों में भारत कहाँ ले जाना है दुनिया में, उस विजन और विजन के लिए पॉलिसी आप सबके सहयोग से, विचारकों के सहयोग से बना के उस कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उस आधार पर उन्होंने दुनिया को वचन दिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन भारत दुनिया में उपस्थित करके इस एक सुसंस्कृत देश, जिम्मेवार देश के रूप में दुनिया को वचन देता है। उस वचन को पालन करने में आज का ये कदम एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम सब इसमें जिम्मेवारी से इस नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े। इस विश्वास के साथ हम आज के मौके पर आप सभी को शुभेच्छा व्यक्त करते हुए एक बार जोशी जी को बड़ा सम्मान देते हुए आप सबका आदर करते हैं। सभी को नमस्कार। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्री, who has taken lot of interest, and recently he got his knee surgery and it got replaced. In spite of that, yesterday also he called me and said, जब भी आप रोकोगे मैं आना चाहता हूँ। तो he has taken lot of interest and मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। In spite of
considering also you are here today. Dr. V.K. Saraswat, Dr. Anish Kumar Jain, Shri Tarun Goyal, Shri Nagaraju ji, Pramod Agrawal ji, and all other CMDs and the directors, officials of all the PSUs who are going to take up this task. तो ये बहुत बड़ा टास्क ही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पहला के बारे में तो चर्चा तो बहुत दिनों से चल ही रहा है, बट एट द आउटसेट मैं आपको एक चीज तो अच्छी चीज पहले शुरुआत में बताना चाहता हूँ. लास्ट ईयर ऑल ऑफ ए सडन द पोस्ट कोविड surge was so fast and we had around 100 million tons of the coal stock and all of a sudden demand इतना ज़्यादा हो गया, so we started October 1st with the 8 million ton last year. That was 21st, October 1st, 2021, and this year we have started the October 1st with the 24 million ton, and myself and our secretary also, who is retiring now, and Pramod Agrawal is also sitting here, we have said that by 31st March, at least there will be 40 million tons of stock in all the thermal power plants. That is the situation today, and under the guidance of Honorable Prime Minister and his direction, today I can assure you, in coming few months, India will be purely Atmanirbhar as far as thermal coal is concerned. Today, almost 5 PSUs have joined together here: Coal India, NLC India, BHEL, and Indian Oil Corporation, GAIL India Ltd. They are signing almost 4 MoUs, large-scale coal to chemical project to the surface coal gasification project, and 1 pilot plant for lignite to syngas conversion. तो जब 2020 में हम कमर्शियल कोल लॉन्चिंग का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकमल से करवाया था, तब पीएम साहब ने हमको एक डायरेक्शन दिया था. कमर्शियल कोल माइनिंग इटसेल्फ वाज ए बिग चैलेंज. तो इसमें प्रो अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था. तो शायद झाव वाज देयर एट दैट टाइम. तो अंत में प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में हमने डिसीजन लिया और वो भी अच्छा आज चल रहा है. और उसमें भी विद इन दैट ऑल्सो मोर देन इनिशियली वी गेव अराउंड 20% discount as far as the revenue sharing is concerned, and now it is universally applicable to everybody. 50% revenue share we have allowed as far as if somebody is going for the gasification, even 10% of his total production. तो ऐसे बड़े बड़े निर्णय तो हमने किया है, लेकिन जैसे सारस्वत जी ने उल्लेख किया और डॉक्टर जैन साहब ने उल्लेख किया, because of the high ash content, the technology was the issue. Now BHEL has come out with a solution, and I hope in a large scale they will be successful. And there is also, after PM's announcement, Honorable PM's announcement, and we had a detailed discussion many times with the Ministry of Finance and Ministry of Finance. Then today we got around 6,000 crores of the, in a way, PIM scheme. That's out of that 3,000 crore for these PSUs which are participating today as far as the coal gasification is concerned. We are reserving 3,000 crore for the correct anything. तो आपको क्योंकि आप रिटायर होके जा रहे, पूरा साइन करके जाना है. तो इसलिए हमने वो भी हमने प्रावधान रखा है. और जैसे हमारा चैलेंज यही है कि 2014 के पहले जब से 10 साल पहले हो और उससे पहले भी हो, हम कोयला का उत्पादन
जबरदस्त करके हमारा एनर्जी नीड्स का पूरा कर सकते थे। तब देयर वाज नो मच रिस्ट्रिक्शन और डिस्कशन अबाउट दिस COP26 ये सब अभी वो नहीं था। तो जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू कर दिया, अभी तो नेचुरली ग्लोबल वार्मिंग ये सब इशू है। तो नाउ दिस इज द टाइम दैट समहाउ वी शुड गो अहेड एंड फाइंड आउट द टेक्नोलॉजी एंड इन ए लार्जर स्केल व्हेन यू प्रोड्यूस, उसमें भी हमारा टेक्नोलॉजी प्रूवन होना चाहिए। इसलिए इनिशियली 1 is 50% रेवेन्यू शेयरिंग में भी हम इसमें वी आर गिविंग द रिबेट एंड ऑल्सो दिस PIL scheme is also there. So keeping that in mind, we should see that all put together PSUs, हमको एक सक्सेस स्टोरी खड़ा करना है। We should see that this is successful because सिर्फ by coal gasification, I mean coal burning itself, whatever we are doing today, that is by the burning of the coal. So today almost today 70% of the total requirement, I mean energy needs, we are fulfilling by this, and even today coal makes more than 70% of the power generation. So keeping that in mind, this coal gasification, because our commitment is there. We have, India stands committed to reduce its emission intensity of GDP by 45% by 2030. तो पंचामृत का उल्लेख माननीय पांडे साहब ने किया है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, MoU करने से हमारा जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया है। ऑल PSUs टुगेदर, कभी कभी क्या होता है, बहुत PSUs ज्वाइन होने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में अगर ज़रूरत है तो सेक्रेटरी स्वयं इन्वॉल्व हो जाए, BK सारस्वत का इसमें सहायता और गाइडेंस ले लीजिए। बट whatever we need to take the decision, we have to take the decision at the appropriate time, and we should see that this, I mean, whatever the venture we are doing, because it is the direction of the Honorable Prime Minister and the call of the Prime Minister that by 2030 we should convert 100 millions of the coal into the gasification. This is our target, and for that Prime Minister is supporting, his support is, it is unimaginable. जब भी हम मिलते हैं प्रधानमंत्री जी, हम मुझे तो पूछते कोल गैसिफिकेशन कहाँ तक आए, तो इसीलिए ये 6,000 करोड़ भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हमको मिला है, और उसके साथ ही साथ 50% का जो रिबेट है, मीन डिस्काउंट इन दी रेवेन्यू शेयरिंग, वो भी हो गया है। तो ये सब देखते हुए हमको इसमें कुल मिला के we should see that this becomes a success story so that we can bring in others also. So as you all know, we are committed towards the 2070 के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। कभी मैं देखता हूँ जब बहुत सेक्रेटरीज वगैरह का कमेटी बनाते हैं, डिसीजन डिले होते जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। All together, we should sit together, work out together, and see that this becomes success. And this success story we should present. हमने बहुत INS विक्रांत से लेके अभी जो हेलीकॉप्टर हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये सभी हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अच्छा परिचय है। This is the best example that all put together, if you mind, and a political decision, a political leader takes a appropriate decision at the appropriate time. तो ये सब देखते हुए हम इस सेक्टर में भी हमको काम करना है, and wherever and whenever you say that from the Ministry of Coal, Ministry of Mines, these are things needed, I am there with you. And Pandey ji also, he has already assured, and we have already had a talk with Shri Hardeep Singh Puri ji, and moreover we have the full blessings of Honorable Prime Minister, and बार बार वो हमको याद दिलाते ही रहते हैं इसके बारे में। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, आज को MoU हुआ है, MoU से काम शुरू हो गए थे, MoU का काम पूरा होने के लिए बहुत समय है,
बहुत हमको आगे जाना है, तो यही मेरा आग्रह है आपको। तो मैं एक दो स्टेप तो हमको आज MoU के कारण आगे बढ़ा है। We have put one step ahead today, and I wish you all the best. And wherever and whenever our intervention is needed, I am there with you. But I want that this should be most successful. Thank you very much. धन्यवाद। आप दोनों का आभार और ये country and installation of the indigenous gasification technology and scaling up for production of ammonium nitrate for captive consumption in sea. Current capability studies are underway. MoU exchange करते हुए लता जी डायरेक्टर BD और बेसिक MD ISD डायरेक्टर BD MoU exchange करते हुए in January 2020 CIL executed an umbrella agreement for mutual collaboration in coal gasification projects and coal bed building, the largest solid coal fuel provider of the country, and has executed this agreement to jointly explore business opportunity for setting up a coal or IOCL GAIL petrochemicals. दोनों exchange करते हुए CIL से समन्वय जी ED corporate affairs and business development और IOCL से GAIL petrochemicals. IOCL, the largest refinery, exchanging the MoU, creating the largest engineering and electrical equipment manufacturer of the country, and NLC of power generation. Shri Pralhad, Joshi जी, Ministry of Coal Mines and Parliamentary Affairs, Dr. Mahendra Pandey जी का भी आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी के साथ भी समय निकाला इस कार्यक्रम में जब मैंने उपस्थित हूँ, आपका भी बहुत बहुत आभार। माननीय श्री M नागराजन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके सहयोग सानिध्य से इस कार्यक्रम की संरचना, रूपरेखा और किस तरह से संकल्प से निभाते हैं, बहुत बहुत आभार। मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल इस कार्यक्रम को शोभित किया, अपितु इस बात को प्रमाणित किया कि उनका कमिटमेंट इस प्रोजेक्ट के प्रति है। और ये सही है कि उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के बिना ये MoU साइन नहीं होता। और इसके प्रति कई प्रकार की आशंकाएं थी, उन सबको उन्होंने ये नींव का पत्थर है, किंतु अगर मजबूत नींव हो तो काम निश्चय आगे अच्छा होगा। इसके पश्चात डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, माननीय मंत्री भारी उद्योग का आभार प्रकट करता हूँ। अपने ऑपरेशन के पश्चात के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ जो कार्यक्रम में आए। एक्चुअली ये सबका ड्रीम, जिन्होंने भी ड्रीम देखते हैं तो शायद गैसिफिकेशन का ही देखते होंगे और व्यक्ति करता है तो सभी लोगों को उसके प्रति विश्वास होता है। और ये विश्वास देने का कार्यक्रम आप डॉक्टर BK सारस्वत और माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आप लोगों ने कार्यक्रम के ये कार्य किया है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये MoU साइनिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि इस बात को ठान लिया जाए तो निश्चय ही कार्य पूर्ण किया जा सकता है।